In the last class, we discussed that what are the various factors which is affecting the entrepreneurship, which we already discussed. What are the various characteristics for entrepreneurship of entrepreneurs we discussed. In today's class, we are going to understand that what are the pros and cons of the entrepreneurs. It means what are the advantages and disadvantages for entrepreneurs. ठीक है, क्या एडवांटेज, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज है आपके entrepreneurs के लिए. ठीक है, फॉर सेटिंग द बिजनेस क्या क्या आपको लॉस हो सकता है, क्या क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है. Pros and cons का मतलब होता है कि इफेक्ट इन बोथ वेज, एडवर्सली एंड इन द पॉजिटिवली, राइट. So let's move toward the topic. What are the pros? It means what are the advantages of being an entrepreneur? The first thing is that we are our own boss. It means if we are starting the business, we are not doing job under anyone. It means कि हम अपने खुद के मालिक हैं. We are our own boss, right? So we have control over our future, like what we want in our future, what is the growth and everything, that is totally up to us. हमारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि हम अपने खुद के बॉस हैं. क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, so the first advantage of entrepreneurs are that we are or you are your own boss and you can control over your future. This is the first point. The second one is choices. मतलब Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आपके पास चॉइस है. किस चीज का चॉइस है? You can choose your time, that when you can come to the office. You can choose the employees. It means that the opportunities, the decisions are in your hand. मतलब आपके हाथ में डिसीजन लेने का पूरा राइट है. आपको किस टाइम पे ऑफिस में आना है, आपको कब ऑफिस से जाना है, आपको वेरियस डिसीजन लेने का आपके पास पूरा फुल राइट है. आपके पास चॉइस है. ठीक है. But do you think that the same option is available if we are working in any organization or company? Do you think that we have our own choice? No, ma'am. Obviously, no. Why? Because we have to follow the norms and policies which is made under any company. Whatever they will basically, whatever salary they are providing, that is also fixed. At which time we have to come to the office, that is also fixed. We have to follow all the norms and policies. But if you are an entrepreneur, you have multiple choices. The decision is all decision you can take only. You don't need to follow the norms. मतलब you have to follow the norms, but the norms can be made by you only. आप खुद अपने ऑफिस के लिए पॉलिसीज बनाइएगा. ठीक है, आपके पास वाइडर चॉइस रहेगा. ठीक है, लेकिन यही अगर हम किसी ऑफिस में खुद वर्क करते हैं, so we have to follow the norms and policies of that company. ठीक है. Next point is opportunities to fully utilize your talent, skill, knowledge and creativity. What does it mean? That कि अगर आप खुद एक entrepreneur है, so you are not working in a one area, but you have so many areas to work. You will work in the various departments, right? You have to maintain the finance department. You have to manage the marketing department, sales department. So you have full बोल सकते opportunity to utilize your potential. आपके पास जो भी potential है, आपके पास जो skill है, आपके पास जो knowledge है, you can apply it in various sector. ठीक है, आप अपना 100% अपना potential को utilize कीजिएगा for establishing and growth of the business, right? So in short, आप पोटेंशियल का मतलब अपनी क्षमता को आप यूज कीजिएगा प्रॉपरली अपने बिजनेस के लिए. ठीक है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू विल बी योर ओन बॉस. ठीक है. सेकंड, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस बिकॉज टोटल whatever decision you are taking, that is totally up to you, right? Third one, that you can utilize your potential and you can grab the opportunity, you can utilize the knowledge, skill, ठीक है, for growth of your business. Now the next point, क्योंकि जो business का growth है वो सिर्फ और सिर्फ at the time when you are the entrepreneur, जब आप नए नए business को start करते हो, तो आपको उसको कहाँ लेकर जाना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका गोल क्या है, वो सिर्फ आपको पता होता है. एंड लेटर ऑन यू आर गोइंग टू गिव दिस नॉलेज टू योर एम्प्लॉइज एज वेल, राइट?
तो आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपके बिजनेस का सक्सेस वो आपके हाथों में होता है, right? But the same thing is not with the organization. If we are working as an employee, the contribution of everyone, every employees matters. But in the case of the entrepreneurship, or in the case of if you are entrepreneur, the growth is totally the growth of the business is will be happen only when you want to do that, right? Next one is financial reward. What does it mean? That whatever profit you will earn through that business, जो भी business से profit earn करोगे आप, वो आपके लिए beneficial होगा. You are not going to give that money to others, but you will enjoy the profit whatever you will earn through that business. Clear हो गया सबको point? So you will get the financial reward. Clear हो गया? समझ में आ गया? You don't need to share it with anyone, but you have to basically keep it with yourself only. Yes, later on you have to share it with the employees, that is true, but you will earn the profit as a whole. Okay, so you will get the financial reward. Next one is job security. This is a very important point. Why I am saying this? That we all knows that in private sector, I'm not saying about the public sector or government organization. आपकी government organization में stability बहुत high होता है. No doubt the salary can be less, but the stability is very high. No one can ask you to leave the organization in the case of the government organization or public companies, majority of the public companies. But in the case of the private sector, the hiring and firing is totally dependent upon your performance. If your performance is not suitable, the company is not going to tolerate you, but they will ask you, or they will terminate you, right? And so that is one of the reason that in the situation of entrepreneurship, the job security is very high as comparison to doing job under any private organization or under any company. Because जॉब से आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपकी खुद की बिजनेस से जॉब से आपको कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है ना. So in that situation, जो job security है, that is very high in the case of the entrepreneurship, right? तो मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन भी करते चल रही हूँ कि बाकी बिजनेस से कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या फायदे होंगे. जॉब सिक्योरिटी होगा. अच्छा, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन, that do you think that the company is efficient if the employees turnover is very high? I'm asking something. Do you think that company is efficient if the employees turnover is very high? First of all, you all knows what is the meaning of employees turnover. What is the meaning of employees turnover? Anyone? No, ma'am. No. Let me tell you that if in the organization, if the people are leaving the organization in the frequent way, or the people are leaving the organization, मतलब एक तो frequent way में जा भी रहे हैं और hiring और मतलब firing भी बहुत ज़्यादा high हो रही है. So ऐसे situation में do you think that the company or the organization is efficient? आपको क्या लगता है कि ऐसे केस में आपकी जो कंपनी है वो efficient है? Yes or No, no? ma'am. No, No, ma'am. no. Yes, so job security is also one of the reason, that is a motivating factor which leads entrepreneurs to set up the business, right? So here we are getting the here we understand that what are the various benefits of entrepreneurs, benefits for entrepreneurs. Next point is variety in your work routine. Variety in your work routine. Variety in your work routine. See, your work is going to diversify if you are setting your business. Why? Because I already told you that you don't need to do only one work, or you have to work in one department, but you have to look up so many departments at a single time. So the work variety is very much diversified if you are an entrepreneur. Like I told you that you have to do the marketing work, you have to do the advertisement, in short marketing, which is a part of marketing. You have to basically manage the funds, you have to allocate the funds, you have to hire the people, employees in the organization. So do you think that there are so many tasks that entrepreneurs have to do single hand? ठीक है, अकेले एक साथ अकेले काम करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि उनके पास लोग हों अवेलेबल. ठीक है, so इनके वर्क डाइवर्सिफिकेशन की वजह से they have multiple works to do and they have so many add-ons in the routine.
हमेशा कुछ ना कुछ नया उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज बेनिफिशियल एज वेल because you will become more skilled and you will become expertise in that particular area as well, right? Now the next one is self satisfaction. सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? आत्म संतोष जिसको हम कहते हैं, ठीक है? व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, व्हेन देयर इज नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, there is no extra stress because everything is managed by you only, right? So in that situation you will get the self satisfaction, आपको खुद में अच्छा लगेगा, you will feel good that you are running a company, ठीक है? Social recognition is also one of the factor for the self satisfaction because लोग आपको जानेंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपका फेम होगा, ठीक है? लोग जो पीपल होंगे, जो सोसाइटी में लोग होंगे, वो आपको एज ए इंस्पिरेशन देखेंगे. True. So that is, these are the advantages of for being an entrepreneur. I guess सारे points clear हो गए होंगे. सारे points Yes. clear हो गए, advantages के सारे points clear हो गए. In today's class, we are going to do the story on Mamaearth and how it is started. We are going to do it after completing this topic, right? Okay, let's move toward the what are the disadvantages. So do you think that being an entrepreneur, it is a very easy task to run a business? What do you think, that it is a very easy task? And do you think that it is everyone's cup of tea? Do you think that? आपको लगता है कि ये सबके बस की बात होती है और सब कर सकते हैं, सब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं? No, ma'am. No, ma'am. Basically, somehow if your planning is not strong and the बोल सकते हैं कि if you are not a risk taker, you cannot able to become an entrepreneur. And everyone don't want to be even. बहुत सारे लोग entrepreneurs बनना चाहते भी नहीं है. They are happy with their job. But some people realize that if they are working in the organization, no, this work is not for me. So this is somehow motivating the entrepreneurs or motivating the people to become an entrepreneur. But still, if we are getting the profit, there are always some losses which is associated with that. And I am going to discuss about those disadvantages. The first one is chance of business failure. It is a major drawback because if I will tell you the ratio, only 6% entrepreneurs become successful in India. Only 6%. Okay? And even in that, during the COVID period, that is even decreased, and now it is around 2 to 3% success rate of entrepreneurs are there in India. So the ratio is a very surprise thing for us because 2 से 3% सिर्फ सक्सेस रेट है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं. और फेलियर के चांसेस इसलिए भी हाई हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. If you are not providing the better product, if you are not providing the better service, no one is going to move toward your company. That is the truth. So the chances of this business failure is very high because there are so many competitors present in the market, right? Because of the environment. And nowadays आपको तो पता है कि we are in the globalization era. हम ग्लोबलाइजेशन एरा में हैं. सो हमारे लिए मार्केट सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं है. वी हैव अ होल मार्केट, मतलब पूरा वर्ल्ड मार्केट अब हमारे लिए मैटर करता है. ठीक है? सो इन दैट सिचुएशन वी अंडरस्टैंड दैट कि आपका जो बिजनेस फेलियर है, दैट इज द चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर इज वेरी हाई. सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज. राइट? क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? Yes, Now the second one. Yes. Everyone turn on your camera. Chaliye. Second point, time consuming. So it is not one day game. It is not one day game. एक दिन का खेल नहीं है ये. It will take long time because you have to do so many things before establishing a business. You have to go to the multiple procedure. You have to comply various business government regulation before starting the business. You need to see the location where you are going to start the business, how you will do the marketing. So there are multiple decisions and there are multiple process to establish a business, right? So this is a very time consuming thing. Like you have to give long time to establish a business in the market, or for becoming a successful entrepreneur, you have to give
लॉट ऑफ टाइम, लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स 18 आवर्स लोग काम करते हैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, बेटर करने के लिए, ग्रोथ के लिए। सो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये पूरा आपका क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड था आपका वही बिजनेस फेलियर। थर्ड में क्या होगा, इनकम इज नॉट सिक्योर, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर पॉइंट, because if we are doing job in an organization, our salary, the wages, that is fixed, right? Like for example, if one professor is working in the college, maybe the 50,000 rupees is fixed, that he will get 50,000 rupees every month. But in the situation of entrepreneurship, we don't know that we'll get the same salary in next month or not. We'll earn the same profit next month or not. Maybe in the month of January, you earn 1 lakh rupees, or in month of February or March, you earn 0 rupees. It might be possible because there are so many ups and downs which is related with the new startups. सही बात है या नहीं? सही बात है। तो ऐसे सिचुएशन में, इस तरीके के सिचुएशन में आपके पास कोई सिक्योर और रेगुलर इनकम नहीं है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डीमोटिवेटिंग यू, because if you are not able to earn properly, if you are not able to run your business, if you are not able to provide proper salary to the employees, do you think that your business is going to be run for the long time? No. Maybe the survival rate is very low in that situation. The income is not regular. ठीक है, कई बार पैसे की एक्सट्रीम जरूरत है और आपकी अर्निंग हो ही नहीं रही है, तो कोई सिक्योर इनकम नहीं रहता है आप अगर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। लेकिन once you will become successful in that, your income is in a millions, I guess, right? And when I'll tell you about the Mamaearth, how it was started, I will tell you that now they are the one of the millionaire company है वो इंडिया का। कैसे हुआ उसके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सिक्योर आपका इनकम नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर टू सक्सीड। प्रेशर टू सक्सीड, अब प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा कि आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि आपने उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत जगह से फंड लिया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज, उनका करियर आपके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? उसके बाद आपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए होंगे अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपने अपने ओल्ड जॉब को क्विट किया होगा, छोड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं, और लोग आपके बारे में जानते होंगे, सोसाइटी में लोग जानते होंगे कि यू basically engaged in the startups. So in that situation, there is some pressure always in your mind that you have to become successful, right? जैसे कि आप एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम से पहले क्या प्रेशर होता है कि हमें पास होना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, ऐसा होता है ना। द सेम सिचुएशन इज विद द एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? यस। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज प्रेशर, ठीक है। और स्ट्रेस रहेगा, जब प्रेशर है तो स्ट्रेस आपके साथ हमेशा ही रहेगा, टेंशन रहेगा, ठीक है। इरिटेशन हो जाएगा कई बार आपके साथ, ये हो सकता है कि दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल बिहेवियर, दैट यू आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली, देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन, योर रूड बिहेवियर. So these things can be possible when you are basically engaged in the startups, or you are basically starting a new business. So stress, pressure, your change in the behavior, ठीक है. So maybe it is also responsible for decreasing your efficiency. कई बार ये भी होता है कि आप आगे के कुछ steps को properly नहीं ले पाते हो because of these things, right? So this is always associated with a new business, these things always. And the next one is financial risk. See, if I'll tell you that for starting a very small general store, at least we required 5 to 10 lakh rupees. So just imagine if we are starting a business, at least we require 10 to 50 lakh rupees around हमें चाहिए ही चाहिए होगा. Initial capital इतना चाहिए. अब capital में भी there are two type of capital. The first one is where you have a fixed capital, जहां पर आप लैंड परचेज करोगे, बिल्डिंग परचेज करोगे, मशीनरी परचेज करोगे. एंड देयर इज अ वर्किंग कैपिटल, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज के जो खर्च हैं, पैसे हैं, जो आपको रिक्वायर है जब आप एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर आपको अच्छा खासा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. हो सकता है आपने अपनी पूरी सेविंग को अपने बिजनेस में लगा दिया हो, इन्वेस्ट कर दिया हो, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क की संभावना है. कैसे कि हो सकता है कि आपका वो 10 लाख रुपया पूरा ही डूब जाए, पूरा ही आप बिल्कुल जीरो पे आप आ जाओ. इट माइट बी पॉसिबल. कई बार तो हम लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
लेकिन because of the failure in the business, we are not able to return back that money to the bank, right? So there is always a financial risk associated with the business. It might be possible that from 100 to 0 you can come, or from 0 to 100 you will go, right? Clear हो गया? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's move toward the next point. That is, just wait for a sec. Let's move toward the next point. That is sacrifices, which I already told you. अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना, अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा, ये बताइए मुझे। अगर क्लास में फर्स्ट होना है, अगर क्लास में फर्स्ट होना है तो अपने स्लिप को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पबजी खेलना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, राइट? ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. So same thing is with the entrepreneurs. Like if you want to become successful, और एक लाइन जो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं all the time, that is कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, and this is the suitable word, suitable line for this point, sacrifices. Here you have to sacrifice your family time, जो अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिताते थे, जो एक वर्किंग आवर था आपका 9 to 5, 9 to 6, उसके बाद अपने घर में जाते थे, घर पर आराम से टी चाय कॉफी पी रहे होते थे, आराम से लाइफ चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज योर होल अटेंशन रिक्वायर्ड, कहाँ होल अटेंशन चाहिए, आपके बिजनेस को, राइट? हो सकता है उसके अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस भी करना पड़े, आपको अपने सारे फंड्स को लगाना पड़े, फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस देयर, योर पर्सनल सेक्रीफाइसेस आर देयर, राइट? So in short, we understand to order to succeed or to get succeed in the business, we need to and we do so many sacrifices. Sometime it is very demotivating, but we have to do for establishing the business, because our new business want time from us, right? वो हमसे हमारा समय मांगता है और हमें वो देना है, ठीक है? So we have to do sacrifices. So this is also one of the disadvantages. This is one of the disadvantage for being an entrepreneur. Now the next one is responsibilities. So if you are starting a business, you are giving job to so many people. For example, if you in starting you'll give job to 2 person, तो वो जो 2 person है वो भी आपकी responsibility है, ठीक है? So in short, there are so many responsibility rules which you need to basically, बोल सकते हैं ना, उसको आपको कैरी करना पड़ेगा, आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? Next one is regulation and paperwork. So regulation and paperwork, why I'm saying that, because if you are and if you want to become an entrepreneur, you have to be So next disadvantage we were discussing, that is regulation and paperwork. There are so many compliances which is made for an entrepreneur. There are so many compliances for starting a new business. Sometimes if you are engaged in some production of some product in which you require license, you need to fulfill all those rules and regulations. You have to do paperwork, you have to visit multiple government offices, you have to fulfill or provide whole documents, ठीक है? तो आपको पूरा documentation वगैरह कराना पड़ेगा, पूरे process को follow करना पड़ेगा. So it is a very time taking thing. There are multiple steps which is required to be fulfilled, ठीक है? और इसी वजह से this is also one of the disadvantages, because it is one of the time taking process to establish a business, ठीक है? So these are the advantages and disadvantages for being an entrepreneur. Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? किसी को कोई डाउट है? No. समझ में आया सबको? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? Yes, ma'am. अगर तुम लोग को एक एक वर्ड में इसको लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो. लिख चुके हो सारे पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने जो भी मैंने बताया क्लास में अभी? No, ma'am. ओके, चलिए ठीक है. एडवांटेजेस में लिख लो. एडवांटेजेस में क्या होगा? ओन बॉस. एक एक वर्ड में मैं सब पॉइंट्स लिखवा रही हूँ. ओन बॉस फर्स्ट में लिखिएगा एडवांटेजेस में. ओन बॉस. Pros and cons of being an entrepreneur का फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज में ओन बॉस, ठीक है? ऐसे बॉस लिख लो, BOSS बॉस. इसमें समझ आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, कि हम अपने खुद के बॉस होंगे. सेकेंड वन इज चॉइसेस. सेकेंड पॉइंट कीवर्ड इज चॉइसेस.
You have multiple option that when you want to come to the office, what kind of norms you want to make for the offices, the policies, everything is totally up to you. ठीक है, तो डिसीजन इज किसके हाथ में होता है? डिसीजन एंटरप्रेन्योर के हाथ में. तो सेकंड पॉइंट इज चॉइसेस. थर्ड में लिखिए अपॉर्चुनिटीज. थर्ड पॉइंट में लिखिए अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मौके. किस चीज का मौका मिलेगा? यहाँ पर आप अपने स्किल को, क्रिएटिविटी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, पोटेंशियली यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड. फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड. Fourth one is financial reward. Fifth one is job security. सब लोग लिख रहे हो ना एडवांटेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fifth, ma'am. Fifth one is job security. Job security. Sixth one is varieties. Varieties किस चीज में होगा? आपके वर्क रूटीन में होगा, आपको मल्टीपल काम करने का मौका मिलेगा. तो वेराइटीज. You don't need to do the same work like if we are the employee, we have to do the work in the continuous way, same काम करना होगा. नहीं, you have multiple options. यहाँ पर आपको hindrances भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर opportunities भी मिलेगा. ग्रैब भी करना है, hindrances को minimize भी करना है. You will get multiple options, varieties of the work. ठीक है, वेराइटीज इन योर वर्क रूटीन. और इसको से वेराइटीज भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट वन इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट वन इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन. क्लियर? सेल्फ सेटिस्फैक्शन लिख लिया सबने? Yes, ma'am. सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? आपका एक पर्सनल अचीवमेंट होगा, लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे, सोशल रिकॉग्निशन होगा, नाम होगा सोसाइटी में. ठीक है, सो दिस इज समहाउ प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन, राइट? आपको संतोष होगा इस काम को करके कि हाँ मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, लोगों को जॉब दे रहा हूँ. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉस. दीज आर द प्रॉस. ठीक है, ये सब आपको फायदे होंगे. नेक्स्ट वन इज कॉन्स. ठीक है, अब आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या रिस्क है आपके न्यू बिजनेस के साथ. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट द फर्स्ट पॉइंट इन कॉन्स. बिजनेस फेलियर. मतलब डिसएडवांटेज क्या है? बिजनेस फेलियर. बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और मैंने आपको रेशियो भी बताया. ठीक है, Repeat again, ma'am. बिजनेस फेलियर. बिजनेस फेल से बना है फेलियर. Okay, now the next point is time consuming. Next one is time consuming. Time consuming. Time consuming. ठीक है, नेक्स्ट में लिखिए irregular income. Irregular income. Irregular income. Everyone turn on your camera. Irregular income. मतलब इनकम आपका फिक्स नहीं है तो इरेगुलर है. कभी इनकम होगा, कभी नहीं होगा, फिक्स नहीं है. तो किसी मंथ 1 लाख तो किसी मंथ 1000, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है. तो इरेगुलर इनकम के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रेशर. प्रेशर रहेगा आपके दिमाग में हमेशा टू सक्सीड. बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का प्रेशर दिमाग में हमेशा रहेगा. स्ट्रेस रहेगा. ठीक है, तो प्रेशर टू सक्सीड, स्ट्रेस, फाइनेंशियल रिस्क इज देयर. फाइनेंशियल रिवॉर्ड है तो फाइनेंशियल रिस्क भी है. पूरा फायदा होगा तो आप ही उसको एंजॉय भी कीजिएगा और अगर लॉस होगा तो उसको ही आप फिर कंपनसेट भी कीजिएगा, आप ही लॉस को. तो यहाँ फाइनेंशियल रिस्क भी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सैक्रिफाइसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज सैक्रिफाइसेस, जिसको हम हिंदी में बलिदान कहते हैं. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, वही वाला चीज है सैक्रिफाइसेस. ठीक है, because everyone have 24 hours and everyone will become famous, success by utilizing that 24 hours, and everyone have equal time, and it is totally up to us that how we are utilizing that time. True or not? सही बात है ना? हाँ, चलिए sacrifices लिख लिया. Now next लिखिए regulations and paperwork. Regulations and paperwork.
regulations and paperwork. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सारे प्रॉस एंड कॉन्स? किसी को भी किसी भी पॉइंट में डाउट है? Anyone have any doubt in this topic? किसी को भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कोई भी डाउट? मैम अभी वाला थोड़ा No, डिस्कस। यस रुचि, यस रुचि। मैम रेगुलर इनकम एक बार आप बता देते। सो इरेगुलर इनकम का मतलब बेटा ये है कि व्हेन वी आर बेसिकली एंगेज्ड इन द न्यू बिजनेस, जब हम एक नए बिजनेस में एंगेज हैं, हम नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा मार्केट में पोजीशन बन चुका हो सकता है कि मार्केट में लोग हमारी कंपनी को प्रॉपरली नहीं जानते। अगर हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो हमारे गुड्स के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, तो एक महीने उन्होंने आपके गुड्स को परचेज किया और हो सकता है कि आपका अर्निंग अच्छा हो, 1 लाख हो गया हो, लेकिन हो सकता है अगले महीने आपके एक भी कंज्यूमर ने उस बेनिफिट को, उस गुड्स को नहीं बेसिकली कंज्यूम किया हो या परचेज किया हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो इनकम है दैट कैन बी बेसिकली लॉस, यू विल बी इन लॉस। व्हाई? बिकॉज आपका इनकम 0 है। हो सकता है उसके अगले महीने आप 2 लाख अर्न कर लो, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 50,000 अर्न करो। तो यहाँ पर जो इनकम है वो एक तो फिक्स्ड नहीं है और ये रेगुलर नहीं है। तो जो आपने फर्स्ट मंथ में अर्न किया जरूरी नहीं है कि वो आप हर मंथ में अर्न करो, और जरूरी नहीं कि अगर फर्स्ट मंथ में आपने कुछ अर्न नहीं किया तो आप नेक्स्ट मंथ में अर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम एक जॉब करते हैं वहां पर हमारी सैलरी तो फिक्स होती है। जब हमें ऑफर लेटर मिलता है तो लाइक आवर सैलरी इज फिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 है तो 50,000 इज फिक्स एंड विल गेट इन एवरी मंथ दैट 50,000। हर एक महीने में हमें वो 50,000 रुपए मुझे मिलेंगे। सही बात है? लेकिन दैट सेम सिचुएशन इज नॉट विद द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, क्योंकि उनके बिजनेस जो है वो स्टार्टअप है, लोगों को नॉलेज नहीं है, सेल अच्छा नहीं है, प्रॉफिट बेटर नहीं है, किसी साल किसी महीने प्रॉफिट हो रहा है, किसी महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनकम जो है वो बिल्कुल बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारी सैलरी जो होती है वो जरूरी नहीं कि हमारे प्रॉफिट पे डिपेंडेंट हो, हमारी सैलरी फिक्स रहती है हमेशा। आई बात समझ में? यस मैम। रुचि, ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को भी किसी भी पॉइंट में डाउट है? नो मैम। Raise your hand. Okay. So let's move toward, I think we already completed with the characteristics of an entrepreneur. Characteristics of entrepreneurs हो गया है complete? Complete हो चुका है? Yes, Yes. Innovators. Who are an entrepreneurs? मतलब characteristics क्या होगा entrepreneur का? कैसे लोग entrepreneur बन सकते हैं? तो इसके मैं बस पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ। आई गेस आई ऑलरेडी इलैबोरेटेड, और किसी को भी कोई पॉइंट में पूछना होगा तो मैं बता दूंगी। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज स्किलफुल पर्सन। स्किलफुल पर्सन, स्किलफुल पर्सन, स्किल होना चाहिए यानी नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर की कंपनी स्टार्ट की, कंप्यूटर सेल करने की, तो मुझे कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए। So skill is required if you are starting any kind of business, right? तो skillful होना चाहिए person. Next one is innovator. Next point is innovator. Next point is innovator. Next one is innovator. अच्छा, innovator का मतलब क्या होता है? जो कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ बेटर प्रोवाइड कर सके सोसाइटी को, ठीक है। सो इनोवेटर होना चाहिए, नए चीजों को बेसिकली एक्सप्लोर करना, नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, नए गुड्स बनाना, टेक्निक्स में इनोवेशन ला सकता है, प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी में। तो इनोवेटिव होना चाहिए पर्सन, इनोवेटर्स होना चाहिए इन शॉर्ट। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि दैट पर्सन इज कैपेबल टू टेक द डिसीजन। मतलब उस पर्सन में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले पाए। ऐसा ना हो कि डिसीजन लेने के टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाए, डिसीजन ले ना सके, एक डिसीजन प्रॉपर टाइम पे ना ले, डिले करता रहे डिसीजन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पर्सन इज एबल टू टेक और कैपेबल टू टेक द डिसीजन, ठीक है। दैट इज फॉर व्हाट? फॉर हिज बिजनेस, फॉर हर बिजनेस, राइट। नेक्स्ट वन इज, एंड दैट एक एंटरप्रेन्योर में ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक एरिया के लिए डिसीजन ले पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एरिया में, बट वो अपने बिजनेस के हर एक पर्सपेक्टिव में, हर एक जगह, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सिचुएशन में दैट पर्सन इज एबल टू टेक द डिसीजन, ठीक है। क्रिएटिव पर्सनालिटी होना चाहिए, तो आई थिंक क्रिएटिविटी समहाउ इट इज रिलेटेड विद द इनोवेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज basic plan maker. The person is able to make the plan, and why the plan is required?
प्लान का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान मतलब एक योजना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और प्लानिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस फॉर मेकिंग अ प्लान। ठीक है, सो जहां आईएनजी लग गया, अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज अ प्रोसेस, राइट। अब प्लानिंग क्या होता है कि वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू गो, इसको पुल करता है, इसके ऊपर पुल बनाता है, यानी अभी हम कहाँ हैं और अब हमें कहाँ जाना है। तो प्लानिंग के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो दैट पर्सन इज ऑल्सो अ गुड प्लानर, यानी वो प्रॉपरली प्लान कर पाए चीजों को कि आगे हमें कैसी स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। ठीक है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो अ गुड प्लानर। ठीक है, नेक्स्ट one is and he is able to understand that what kind of decision we need to take at the time of risk and मतलब किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम चीजों को, वो भी वो प्लान करे। ठीक है, he is a good planner. Next one is dynamic leader. What is the meaning of dynamic? Which is not stable, which is always changes. So that person is a dynamic leader. ही लीडर का मतलब जिसके अंडर में ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, नॉट अंडर में, मतलब एक लीडर का मेन काम क्या है, टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज। ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, साथ लेकर चलना। लीडर कभी भी आपका डिक्टेटर नहीं हो सकता है कि वो आगे आगे चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि लीडर हु इज एबल टू मेक अ टीम एंड हु इज एबल टू टेक दैट टीम टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो पर्सन जो होना चाहिए वो एक डायनेमिक लीडर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो लोगों को मोटिवेट करे, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, लोगों को जोड़ कर रखना चाहे, कोऑर्डिनेशन सिखाए, ना कि दिस बोल सकते हैं ना, उनको वो कोऑर्डिनेट करना सिखाए, मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है वो सिखाए। तो एक डायनेमिक लीडर क्वालिटी होनी चाहिए किसमें, आपके एंटरप्रेन्योर्स में। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, समझ में Yes, आ रही है ma'am. यहाँ तक बात? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस। ठीक है, उस पर्सन, देखो अगर मैं एक एग्जांपल में आपसे पूछती हूँ नॉर्मली, कि अगर मान लीजिए कि आप डिज्नीलैंड गए। ठीक है, अब डिज्नीलैंड में तो क्या होता है, वहां पर स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि कौशल अपने फ्रेंड के साथ गया और कौशल को उसके फ्रेंड ने बोला सबसे ऊपर वाला, जो सबसे बिग साइज वाला जो है ना, जायंट जो स्विंग है उसमें झूलना है। अब कौशल ही इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, अब वो कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं झूलूंगा, मुझे तो डर लग रहा है। इट माइट बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी इज देयर और नॉट। तो ऐसे सिचुएशन में इफ यू आर अफ्रेड फॉर टेक द स्टेप, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कांट एबल टू अचीव और यू कैन नॉट एबल टू बेसिकली एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल। इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर आई एम से, जैसे कि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर पाओगे? जब नहीं आपको कर लगता पाऊंगा है हाँ कि दैट कैपेबल, इफ यू डोंट हैव, यू आर फीलिंग दैट आई एम नॉट कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग दिस थिंग, तो डेफिनेटली यू कांट। ठीक है, तो वो पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, दैट पर्सन इज एबल टू ट्रस्ट ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट। पहले वो खुद पे ट्रस्ट करे, फिर ही वो दूसरे पर भी ट्रस्ट करेगा, अपने एम्प्लॉइज पर भी ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, अचीवमेंट की बोल सकते हैं ना, अचीव कुछ भी करने के लिए पैशन होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो ये क्वालिटीज है एक एंटरप्रेन्योर्स की। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? हाँ क्या कैसे बिल्कुल। करें? अच्छा, आप लोग को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर? द कॉन्फिडेंस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। डोंट यू थिंक दैट दे बोथ आर कैपेबल फॉर गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास? आपको नहीं लगता कि दोनों फर्स्ट पोजीशन ला सकते हैं? लेकिन क्या चीज की कमी होती है? कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस जब आप में नहीं है तो यू कैन नॉट गिव योर डेडिकेशन और एफर्ट्स टू अचीव दैट थिंग। क्लियर हो गई Yes, बात, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट, दैट इज अ, वी कैन से दैट इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गई बात, सब समझ में? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हर्ड दिस नेम ममा अर्थ? कितने लोगों ने सुना है? हैंड रेज कीजिए।
सनी. व्हाट अबाउट द अदर्स? कौशल. मतलब आप लोगों ने मामा अर्थ का नाम सुना है? ये किस प्रोडक्ट्स में डील करता है? आई गेस सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट Cosmetic, दिस. ma'am. बिल्कुल. सो आई गेस सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस मामा अर्थ. ठीक है. So, Mamaearth जो company है, it is a cosmetic company basically, and it is started by offering so many products which is for the infant and for the child. जब ये starting में Mamaearth आया, तो starting में इन्होंने कौन से प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया? They started selling the products जो बच्चों से चाइल्ड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्होंने सेल करना शुरू किया. अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो मामा अर्थ है इसको किसने स्टैब्लिश किया इस बिजनेस को, और अभी ये कैसे इतना वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉस्मेटिक ब्रांड बन चुका है. तो इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द मामा अर्थ वाज फाउंडेड इन सितंबर 2016. 2016 में मामा अर्थ को स्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया. और इसको किसने स्टार्ट किया? हु इज द फाउंडर ऑफ दैट? गजल अलग एंड वरुण अलग. ठीक है. सो गजल एंड वरुण के द्वारा दे बोथ दीज मतलब ये कपल हैं. ठीक है. सो दे बोथ स्टार्टेड दिस particular company and why how this idea is generated. अब ये आइडिया कैसे उनके माइंड में जनरेट हुआ? So let me tell you that they were expecting their first child. ठीक है. And at that time they both are very much conscious toward the products कि कौन से प्रोडक्ट बच्चे की स्किन के लिए अच्छा होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमें परचेज करना चाहिए. ठीक है. जब उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट को देख लिया तो उनको कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला जो टॉक्सिन फ्री हो, जिसमें कोई टॉक्सिक या फिर कोई केमिकल्स ना हो. तो हर एक प्रोडक्ट में उनको कुछ ना कुछ केमिकल मिल रहा था. So they are very much conscious about the skin because they knows कि obviously अब कोई छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्किन कैसा होता है? That is very soft and that is sensitive as well. कोई भी अगर आप उसमें केमिकल उनको यूज करेंगे तो that will be harm them, right? So कहीं ना कहीं they both are very much concerned and they are in stress. वो इस तरीके से स्ट्रेस में थे कि किस तरीके से हम स्किन केयर प्रोवाइड कर पाए अपने चाइल्ड को. ठीक है. तो यहाँ पर इसी से और स्टार्टिंग में दे डिड व्हाट दे डिड कि उन्होंने यूएस से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को मंगवाना शुरू कर दिया अपने बच्चे के लिए. ठीक है. लेकिन ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट था उतने दूर से बच्चे के लिए प्रोडक्ट को मंगवाना. ठीक है. उसके बाद फिर टाइमली रिसीव नहीं होना. देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स व्हिच दे फेस्ड. ठीक है. तो इसके बाद दे डिसाइडेड, तो एक पेरेंट्स के साथ साथ उन्होंने एक पूरी कंपनी को बेसिकली स्टार्ट कर दिया. मतलब बोल सकते हैं पेरेंट्स बने और उसके बाद उन्होंने पेरेंट्स बनने के साथ साथ वो उनको एक एंटरप्रेन्योर बनने का भी आइडिया आया. एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड दिस बिजनेस. ठीक है. इस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया. अगर मैं बात करूं कि मामा अर्थ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दैट इज इन गुरुग्राम. अर्लियर दैट वाज नोन एज गुड़गांव. ठीक है. तो गुरुग्राम में है आपका, दिल्ली एनसीआर में. और मामा अर्थ किस तरीके से अलग है बाकी प्रोडक्ट से, बाकी कॉस्मेटिक्स आइटम से? तो दे आर बेसिकली यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट टू बेसिकली मेकिंग दीज प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है. आपके कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं इस कॉस्मेटिक को, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. मैंने जैसे बताया कि अर्लियर जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो ये बेबी प्रोडक्ट्स सारे बनाते थे, लेकिन अभी ये कॉस्मेटिक्स आइटम्स बना रहे हैं फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. ठीक है. सो यू कैन सी दैट दीज प्रोडक्ट्स आर इवन अवेलेबल ऑन Amazon. Amazon पे भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजिली अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है. ठीक है. सो नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो आजकल की रिक्वायरमेंट है यंग जनरेशन की. ठीक है. अगर मैं बहुत पुराने आपकी कंपनी का नाम यूज करूं डाबर, तो ये आज की कंपनी नहीं है, ये 1970 से भी पहले की जो कंपनी है डाबर. आज भी लोग उस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द आयुर्वेदिक आइटम्स दे आर यूजिंग फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, और दैट इज द आयुर्वेदिक आइटम्स इन शॉर्ट. ठीक है. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग. सो because of the environment pollution, the people want something natural to use for their skin, for their flawless glow. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मामा अर्थ ने अपने इसी कैरेक्टरिस्टिक, अपने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक से उसको डिफरेंशिएट कर दिया बाकी कॉस्मेटिक्स आइटम से. ठीक है.
और इनका जो मैंने बताया हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम सेक्टर, ये पर्सनल प्रोडक्ट्स वही कॉस्मेटिक्स आइटम बनाते हैं, फाउंडर पता ही है 2016 में आया, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, दैट इज होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, दैट इज आल्सो इन गुरुग्राम। ओके, so these you can see the I guess this is screen, आप देख सकते हो ये स्क्रीन को, these are, ये कपल है गजल एंड वरुण, राइट, ठीक है। सो द कॉन्शियसनेस, एक कंसर्न कॉन्शियसनेस अपने बच्चे के लिए, कहीं ना कहीं इनको इन्होंने क्या कन्वर्ट किया, एंटरप्रेन्योर बना दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो पहले उनको अपने बच्चे का ख्याल था कि लाइक बेबी के लिए स्किन के लिए सही नहीं है प्रोडक्ट, एंड लेटर ऑन दे बेसिकली वेरी मच वरीड अबाउट not only for their child but they are worried about all the kids in their friend group, मतलब उनके फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी किड्स थे उन सब के लिए उनके दिमाग में आया कि इनके स्किन पे कितना वर्स इफेक्ट पड़ेगा ये टॉक्सिक केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को यूज करके, और दे आर बेसिकली इन पेन व्हेन दे डिडंट फाइंड एनीथिंग बेटर फॉर देयर चाइल्ड, गुड क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो उनको बहुत पेन हो रहा था इस बात का, और कहीं ना कहीं दैट वो जो बोल सकते हैं ना कि दिस एक्सपीरियंस ड्रोव द ड्यू टू क्रिएट ब्रांड बाय अ पेरेंट फॉर अ पेरेंट, ठीक है, मतलब एक पेरेंट से एक पेरेंट, मतलब कंपनी का पेरेंट बनने तक का ये सफर जो था इनका यहीं से शुरू हुआ। ओके, एंड इवन SMB स्टोरी में वरुण ने क्या बताया है, वरुण जो है अलग, व्हाट ही सेड that we had sleepless nights for 6 months, मतलब 6 महीने तक उनको प्रॉपर्ली नींद नहीं आता था, right from doing research, and they research over this product, creating an R&D research and development team था इनके पास, they applying for the certification and even they got certification from ISO as well, मतलब ISO से भी इनको एक certification मिला है that they are providing the toxic free material, ठीक है, तो you are able to trust on this brand as well, ठीक है, तो पूरा प्रॉपर्ली सर्टिफिकेशन हो रखा है इसका। Okay, so they got what I told you, that they got even certificate from the ISO, and it is Asia's first brand to get the made safe certification, made safe certification, ये एशिया का फर्स्ट ब्रांड है जिसको मिला है मामाअर्थ को। Okay, and they started with 6 product only, the baby product, they started with 6 product, and now they have more than 80 types of product, their category is very vast now, they have so many products, they are offering around 80 products, ठीक है, and they have more than 1.5 million of consumers, and that is in more than 500 cities, so it is not about the metropolitan cities or major cities, but the people who are living in towns, even they are also giving preference to this brand, ठीक है। And earlier if I'll tell you about the background of Varun and Ghazal, so Varun was he was working in the FMCG company earlier, FMCG company में fast moving consumer goods की company में he was working, and his position was there in Coca-Cola and Hindustan Lever में Coca-Cola में he was working earlier, and his wife Ghazal, she was working as a corporate coach in the IT sector, so she was working like a, मतलब they both were working in an organization में दोनों काम कर रहे थे, कंपनी में काम कर रहे थे, and after that starting that business they both quit, ठीक है, दोनों ने फिर जॉब को छोड़ दिया, and it is not only the cost friendly, means the product is not very much expensive, but that is cost friendly, as well as they are basically giving preferences to the consumer, so now this product is consumer friendly as well, मतलब जितना ये cost friendly उतना ही ये consumer friendly भी है, and they use a tagline, मतलब ये अगर मैं marketing की बात करूँ तो they are using a tagline that is goodness inside, ठीक है, goodness inside, and now अगर मैं बात करूं आपकी स्टार्टिंग में जब कंपनी शुरू हुआ था उसके 1 साल के बाद लगभग 109 करोड़ का इनका टर्नओवर था, अब इनका टर्नओवर है 491 करोड़ का, मींस विद इन 2 to 3 इयर्स इनका 4 मल्टीप्लाई इनको इतना प्रॉफिट हुआ है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। सो they basically literally through this company they want to say to the whole society that we are concerned toward your skin, we are concerned toward your health, because of that only we are providing you such kind of product, the natural product,
and they have multiple products. They have skincare products, they have shampoos, they have hair products, they have multiple products right now. They have lotions, they have essential hairs, herbal oils, etc. Even they got प्रॉफिट इन पैंडेमिक, मतलब इनका पैंडेमिक में भी प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हुआ है. ऐसा नहीं कि पैंडेमिक, आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19, उस टाइम पे भी इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुआ था. उसका एक रीजन क्या है ना कि Mamaearth ऑलवेज यूज द ऑनलाइन, इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन है दैट इज वेरी हाई. दे ऑलवेज यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. सो कहीं ना कहीं जो नए टेक्निक को यूज करना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करना, दैट ऑल्सो हेल्प देम अ लॉट. एंड इन पैंडेमिक इवन दे हैव रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स. ठीक है, क्लियर हो गया? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है Mamaearth के बारे में? नो मैम. एंड दे हैव सो मेनी फंड, मतलब अभी इनके पास बहुत सारे हेज इन्वेस्टर्स भी हैं जो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इवन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, शी आल्सो इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी. ऋषभ मारीवाला, एंड देयर आर सो मेनी रिनाउंड पर्सन हु बेसिकली provided fund to this company. Clear हो गया? And nowadays they are also using the social media a lot. And the endorser, who is the endorser? Shilpa Shetty. She is a basically endorser. वो endorse करती है, यानी कि she is also promoting the brand. Okay. Anyone have any doubt? And now she become a brand ambassador. अभी brand ambassador है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा. ठीक है, she is investor as well as she is a brand ambassador. Okay. Anyone have any doubt? कुछ पूछना है Mamaearth के बारे में? How this story started? किसी को कुछ पूछना है? Anyone? Okay, tell me, how is the story and what is the theme of this story? Who is going to tell me about it? Anyone who is going to tell me about this? That what is the theme of this story and how it becomes successful? What is the reason behind it? And do you think that if you will start a cosmetic business, you will get the same success? And if yes, then how? Tell me about it. कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? Anyone? Raise your hand. प्रोडक्ट के बच्चा को कोई साइड इफेक्ट ना हो. So this is the reason that a concern toward your child that lead him to become an entrepreneur, that lead him to being an, मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनाने में इस पूरे प्रोसेस में, मतलब ये जो था कंसर्न, कॉन्शियसनेस था जिसकी वजह से उन्होंने बिजनेस शुरू किया. लेकिन बिजनेस कोई भी शुरू करेगा तो क्या सक्सेसफुल हो जाएगा? इसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि क्या और भी क्या रीजन था कि वो सक्सेसफुल हो गया उनका बिजनेस? हाउ? मैम सब थोड़ी सक्सेस होगा मैम, सबका बिजनेस मैम नहीं हो सकता, वो तो सही बात है, लेकिन इनका बिजनेस Mamaearth कैसे सक्सेसफुल हुआ? व्हाट आर द रीजंस? आई एम आस्किंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज. मैम जब इनके जो बच्चे हुए तो उन्होंने देखे कि मार्केट में इस तरह का नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, टॉक्सिनो जैसे फ्री प्रोडक्ट है. हाँ, उस तरह का प्रोडक्ट को मतलब रिसर्च किए तो पता चला कि मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है. तो उस तरह का प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में लॉन्च किए इसमें. हाँ, ये तो ठीक है कि ये इनका क्या रीजन था प्रोडक्ट को लाने का, इस कंपनी को स्टैब्लिश करने का, वो तो क्लियर है. बट आई एम आस्किंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, दैट हाउ दे बिकम सक्सेसफुल इन दिस. Because the basic thing is that they differentiated their product from the available product in the market. अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग उन्होंने दिखाया. What they showed that they are making the natural product. उन्होंने natural product की importance को बताया. ठीक है, उसके अलावा they use the social media, they use the online platform. These are the strategies or these are the decisions, these are the marketing things which they adopted. That is the reason behind the success of Mamaearth. The way they are advertising about it. ठीक है, कहाँ आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपके कस्टमर्स कौन थे? बेसिकली वो कस्टमर्स जो बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेके कॉन्शियस रहते हैं, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया. ठीक है, सो दे अंडरस्टैंड द कंज्यूमर टाइप, दे अंडरस्टैंड द मार्केट,
they understand the selling strategy, and they understand the basically importance of differentiating the product from the other brands, and they use all these things. That is the reason behind success of this company. आई बात समझ में सबको? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? ओके. Yes. सो हाउस द स्टोरी? कैसी थी स्टोरी मामा अर्थ की? बहुत अच्छी मैम. हाँ, ठीक है. चलो, so in the next class we are going to do something more interesting, and I guess this one is the 5th story, right? We already completed the story of Nykaa, we completed the story of Ola, Flipkart, Fool.company, we already completed that, and this one is the 5th case study, or we can say the success story. Okay, so going to understand about Byju's, that how this company was started and who started this company, ठीक है, and how much successful, कितना successful ये आज है, और कौन कौन से ऐसे एजुकेशन सेंटर्स हैं जिनको इन्होंने बेसिकली बोल सकते हैं परचेज कर लिया, जैसे बायजूस आल्सो परचेज आकाश इंस्टीट्यूट. Yes, so in next class we are going to discuss about Byju's. Okay, anyone have any question? Anyone have any question? कोई भी क्वेश्चन है जिसको जो समझ नहीं आया है? Okay, so we'll meet in the next class on Saturday.